Right now, as the SIR exercise begins in the state of Uttar Pradesh, Chief Minister Yogi Adityanath orders a crackdown on illegals, also orders temporary detention centers in every district. In a strong message, he said that illegals won't be tolerated and national security is the top priority. Joining us now is CNN News 18's Aman Sharma. Aman, when you say infiltrators, how exactly is the Yogi administration defining that? See, Shreya, we all know that the SIR exercise has already started in Uttar Pradesh. Few days ago, we got this picture of the UP Chief Minister, in fact, signing the SIR form himself. And now these latest directions have come yesterday. Chief Minister Yogi has ordered a complete crackdown on illegal infiltration. He has told district magistrates to identify, all the illegal intruders, take strict immediate action, mandated across all the districts of Uttar Pradesh. In fact, the UP Chief Minister has directed that temporary detention centers, should be set up in every district. This I'm reminded of what was a direction given some years back in Assam, and the UP Chief Minister is saying that there should be temporary detention centers set up in every district because law and order and national security, Yogi Adityanath is saying, are his top priority. He's saying that no illegal activity will be tolerated in the state, and I think this is all the preparation that once the SIR exercise is complete in the next few months, the infiltrators will be recognized and will be identified, and then steps will be taken to send them out of India. That is, I think, UP is preparing for. It's a border state, and this already these directions are bothering, I would say, the opposition parties, because Akhilesh Yadav yesterday made the big claim that there's a plan to cancel over 50,000 votes through the SIR exercise. In fact, the Samajwadi Party has written to the Chief Election Officer of UP to extend the SIR by 3 more months. He said that the time right now given for the SIR exercise is very short. It should be extended by at least 3 more months. And, BJP is now hitting back, saying that Akhilesh Yadav is feeling that his vote bank is being wiped out in Uttar Pradesh, which they say is the infiltrators. And that is why a sharp political fight has broken out between the BJP and the Samajwadi Party. But Chief Minister Yogi's directions for a crackdown on illegal immigration, to identify them, to set up temporary centers, is very, very significant, I feel, in the present circumstances. Right, joining us now is BJP SP spokesperson Amit Jamai. So thank you for joining us. Now, could you tell us how exactly is this entire declaration by the Chief Minister being interpreted? And could you tell us what is your assessment of this? देखिए, हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी जो बात बोल रहे हैं डिटेंशन सेंटर को डिस्ट्रिक्ट वाइज बनाने की, हमारी चिंता सबसे बड़ी बात ये कि जो लोग उत्तर प्रदेश से बाहर के लोग आए हुए हैं, यूपी में पॉलिटिक्स कर रहे हैं, और वो किस जिले के डिटेंशन सेंटर में रखे जाएंगे? बहुत से बाहरी लोग हैं, पहाड़ से आए हुए लोग हैं, यूपी में पॉलिटिक्स कर रहे हैं, बड़े बड़े पदों पर हैं। दूसरी बात आई है कि इलीगल इमिग्रेंट, बिहार में जो SIR हुआ, वहाँ के इलेक्शन कमीशन के डाटा बताते हैं कि वहाँ पे इलीगल इमिग्रेंट्स मिलने के बहुत ही कम नंबर्स हैं। तीसरी बात ये है कि UPA1 UPA2 में तकरीबन 82,000 लोग हमने रिपोर्ट किए बांग्लादेश को, और 2014 से लेके आज का जो भाजपा का रिजीम है, 3,000 लोग भी बांग्लादेशी रिपोर्ट नहीं किए गए। गलती किसका है? अगर हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी गृह मंत्री अमित शाह जी पर सवाल उठाना चाहते हैं तो वो उनका डेमोक्रेटिक राइट है, लेकिन वो अपनी सरकार से उठाएं कि आपका जो महकमा है, BSF हमारे बॉर्डर्स पे क्यों हटाई जाती है चुनाव के दौरान, क्यों पश्चिम बंगाल में BSF के नहीं होने से वहां, इसके लिए तो केंद्र का सरकार जिम्मेदार है। तो आदरणीय मुख्यमंत्री जी अगर गृह मंत्री अमित शाह जी के खिलाफ कोई मोर्चा खोल रहे हैं, ये उनका घर का मामला है, हम उस पर कुछ नहीं कहना चाहते हैं। लेकिन यूपी में जो लोग उत्तराखंड से पॉलिटिक्स कर रहे हैं आकर, उनका क्या करना है? कौन सा जिला चुनना चाहेंगे वो तो बताएं। जमई जी, अमन शर्मा बोल रहा हूं। एक और सवाल आपसे पूछना चाहेंगे कि अखिलेश यादव जी ने ये कहा कि हर सीट में 50,000 वोट कैंसिल करने की एक षड्यंत्र हो रहा है SIR के दौरान, पर हमने देखा बिहार में तो कोई प्रोटेस्ट SIR के ऊपर जनता ने नहीं किया। आपको लग रहा है उत्तर प्रदेश में कुछ अलग होने जा रहा है? देखिए, इंटेंसिव रिवीजन का जो काम है, ये कोई भाजपा के जमाने का काम नहीं, वो हमेशा हमारे देश में होता रहा है। लेकिन जिस तरह से 60 लाख तकरीबन वोट्स बिहार में जो वहां पे वर्कर्स बाहर काम करते हैं,
आप हमें बताएं कि जो लोग बिहार के लोग जम्मू कश्मीर में काम कर रहे हैं, पंजाब में काम कर रहे हैं, महाराष्ट्र में काम कर रहे हैं, क्या वो अपना वोट बनाने के लिए वो वापस आ पाए होंगे विद इन अ मंथ? तो हम ही समझते हैं कि ये होना चाहिए SIR, बट इसमें समय का जो सीमा है, माननीय शब्दों ने हमेशा कहा है कि इसका समय सीमा आपको सोचना पड़ेगा कि बढ़ाना पड़ेगा। और एक भी वोट पिछड़ा हो, दलित हो, मुसलमान हो, गरीब हो, होमलेस हो, ऐसे लोग जिनके ऊपर छत नहीं है, ऐसे लोग जिनके पास झोपड़ियों में झुग्गियों में उनकी कागजात कभी जल गए हों, ऐसे लोगों को मौका मिलना चाहिए। और हम ये समझते हैं कि इलीगल इमिग्रेंट का जो क्वेश्चन है, आप इस पे एक्शन क्यों नहीं ले रहे हैं? हुकूमत आपका 14 के बाद है, क्योंकि चुनाव में आपको इससे एक फ्रेंजी फैलानी है, किसी के एक समाज के खिलाफ नफरत फैलाना है, वो आपका धंधा है, वो आप करते रहिए, हमें कोई उससे दिक्कत नहीं है। लेकिन उत्तर प्रदेश में जो उत्तराखंड से लोग आके पॉलिटिक्स कर रहे हैं, वो किस जिले के डिटेंशन सेंटर में रखना चाहेंगे, ये समाजवादी पार्टी बहुत गंभीरता से पूछना चाहती है। जी, अनिला सिंह जी बीजेपी से हमारे साथ जुड़ गई हैं। अनिला जी, आप सुन रही थी समाजवादी पार्टी स्पोक्सपर्सन को, ऑलरेडी SIR पे सवाल उठाए जा रहे हैं यूपी में। आज यूपी CM योगी आदित्यनाथ जी ने एक बड़ा क्रैकडाउन भी ऑर्डर किया है लीगल इन्फिल्ट्रेशन पे। क्या कहना चाहेंगी आप? मेरी सभी को राम राम। और मुझे समझ नहीं आता समाजवादी पार्टी हो रही है। अगर उत्तर प्रदेश की बात करती हूँ तो उत्तर प्रदेश की जनता का ये अधिकार नहीं है कि उत्तर प्रदेश में केवल और केवल जो भारत के निवासी हैं, जो भारत के नागरिक हैं, वो आ रहे हैं। गलत तरीके से दूसरे राष्ट्र के लोग आकर यहाँ पर अपना रैन बसेरा बसा रहे हैं, और जो अधिकार यहाँ के नागरिकों को होना चाहिए उसका वो अधिकार छीन रहे हैं। तो उनको हटाकर उनको वापस उनके देश में भेजना कोई गलत बात है क्या? या इनका वोट बैंक डिस्टर्ब हो रहा है? जो इस प्रकार की पार्टियां हैं जो तुष्टीकरण की राजनीति करती हैं, उनका धंधा था ये कि गैर कानूनी तरीके से लोगों को बसाओ, उनकी IDs बनवाओ, उनसे वोट डलवाओ। ये काम किया है, देश को बर्बाद करने का काम किया है कांग्रेस और उसकी टोलियां, जैसे समाजवादी पार्टी है, TMC है, आपने देखा RJD वगैरह। बिहार चुनाव में आपने देख लिया ना इनका हर्ष। इनको अभी भी समझ में नहीं आ रहा है कि भारत की जनता चाहती क्या है। और उत्तर प्रदेश 25 करोड़ की आबादी वाला प्रदेश अपने आप में एक पूर्ण देश की तरह है। वहां पर ये चाहते हैं कि ऐसे लोग आकर बसे जो हमारे भारत के निवासी नहीं है। योगी आदित्यनाथ जी ने मुख्यमंत्री के तौर पे एक बेहतरीन कदम उठाया है। उनके चुन के जो इलीगल इमिग्रेंट्स हैं उन्हें उठाकर बाहर फेंका जाएगा, उनको वापस भेजा जाएगा। अनिला जी, एक बात जो और आ रही है, जो योगी जी ने ऑर्डर किया है कि टेम्पररी डिटेंशन सेंटर बनाए जाएं हर जिले में, जहां पे इलीगल इन्फिल्ट्रेटर जब आइडेंटिफाई हो जाएं तो उनको वहां पे रखा जाए। इस बात के ऊपर भी ऑपोजिशन सवाल उठा रहा है कि ये टेम्पररी डिटेंशन सेंटर क्यों बनाए जाएं? ये तो उठाएंगे ही ना। इनके अंदर राष्ट्रभक्ति है क्या? ये वो लोग हैं भारत को राष्ट्र नहीं मानते हैं। ये लोग अभी भी गुलामी की मानसिकता में है, तुष्टीकरण की राजनीति में है। इसीलिए उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी 2017 में देख लीजिए, 2022 में देख लीजिए, फिर 2014 में देख लीजिए, 2024 में देख लीजिए, नकारा ना उत्तर प्रदेश की जनता ने इन लोगों को। और कांग्रेस तो कहीं टिकती ही नहीं है। तो सीधी सी बात है, आज उत्तर प्रदेश की जनता जो है भारतीय जनता पार्टी के साथ इसलिए खड़ी है क्योंकि हम उनके अधिकार की बात करते हैं। हम ये चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश का जो नागरिक है वो एक स्वावलंबी हो, उसको हर प्रकार का सुख प्रदान हो, विकास हो, शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो। और ये चाहते हैं कि बाहर के लोग जो इलीगल तरीके से, गैरकानूनी तरीके से हमारे प्रदेश में बसे हुए हैं, ये सब चीजें उनको प्राप्त हों। बिल्कुल भी नहीं होंगी। और ऐसा ना हो समाजवादी पार्टी जैसी पार्टी जो है खाली हो जाए, वही डिटेंशन सेंटर में पहुंच जाए। जी अनिला जी, जमेश जी, thank you so much for joining us on CNN News 18. Back in the studio to Shreya. Now we're slipping into a short break, but we'll be right back with more stories. Stay tuned.